السلام علیکم۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ بھابھی زرینہ کی چھوٹی بہن گلمینا گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لٹی پھوٹی تھی، اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے وجود پر نہیں تھا جبکہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھابھی زرینہ میرے بڑے بھائی کی بیوی تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے۔ میں بھابھی زرینہ کے چھوٹے بھائی گلزیب کو بہت پسند کرتی تھی جبکہ گلزیب گلمینا اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ آج گلمینا اکیلی آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک بات تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی تھی کہ گلمینا کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ گلمینا زاروں قطار روتی ہوئی اپنی بڑی بہن کی گود میں آ کر گر گئی اور کہنے لگی، بہن میں تو لٹ گئی، تمہارے سسرالیوں نے میری عزت کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ تمہیں کیا ہی بتاؤں۔ میں باڑے کے پاس سے دوسری طرف جا رہی تھی کہ کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے دبوچ لی۔ اس نے میرے ساتھ دسترازی کرنے کی کوشش کی، مجھے گھسیٹ کر اندر باڑے میں لے جانے کی بھی کوشش کی، مگر میں نے اپنی جرأت سے کام لیا، اس کے منہ کو ناخنوں سے گھسیٹ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ بروقت وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن یہ زخم میری روح میں ہے۔ میں تو یہاں اپنی بڑی بہن کے گھر آئی تھی، مگر اس گھر میں میری عزت کی پرواہ کسی کو بھی نہیں۔ یہ کہہ کر گلمینا زور زور سے رونے لگی جبکہ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں جان گئی تھی کہ جب کبھی ایسی کوئی بات کسی خاندان میں ہو جائے تو پھر وہاں رشتہ داری کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ایسے میں جبکہ میں گلزیب کو پسند کرتی تھی، اب تو یہ بات ناممکن تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ گلمینا کے ساتھ دسترازی کرنے والا وہ اور نہ وہ شخص کون تھا۔ سبھی میرے بھائیوں پر شک کر رہے تھے کیونکہ ہمارا گھر گاؤں کی آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ ہمارے گھر زیادہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، زیادہ تر بھابھی کی بہن بھائی ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ اب سب لوگوں کا شک میرے بھائی پر ہی جا رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جیسا کہ گلمینا نے بتایا تھا۔ اب یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کے کسی دیور نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی بھابھی کے گھر کی طرف پہنچی، وہاں سے بھی ان کے دونوں بھائی آ کر اسے لے گئے، ساتھ ہی اپنی بڑی بہن سے بھی کہنے لگے کہ تمہیں بھی اگر تھوڑی سی غیرت ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر چلو۔ بھابھی سمجھدار تھی، بولی، میں ایسے میں شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر تم لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اس بدتمیزی اور دسترازی کا فیصلہ جو بھی کرے گا میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی، تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن فی الحال تم لوگوں کو اس فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے گلمینا کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، کیونکہ دسترازی کے دوران اس شخص کے چہرے پر گلمینا کے ناخنوں کے نشان ہیں جبکہ میرے دیور یا جیٹھ کسی کے بھی چہرے پر ایسا کوئی داغ موجود نہیں ہے، سو ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش اور عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ بھابھی کے دونوں بھائی گلزیب اور شاہزیب چلے گئے تھے۔ شاہزیب بڑا ہی سخت طبیعت کا مالک تھا، گلزیب بہت ہی اچھی طبیعت اور ساتھ ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ جب ہی میں گلزیب کو بچپن سے پسند کرتی تھی، مگر اب اس دشمنی کے بعد تو گلزیب سے شادی کا خیال لانا بھی بے وقوفی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے چل پڑی تھی۔ ایسے معاملات میں 2 دلوں کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ گلزیب کی بہن کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ میں اسے دوش نہیں دے سکتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے اصرار کرے۔ اگلی صبح جرگہ بیٹھا، جرگے نے جو فیصلہ کیا اس نے ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے دلوں کو بھی ہمیشہ کے لیے مرجھا کر رکھ دیا۔ میری شادی شاہزیب کے ساتھ طے پا گئی تھی اور یہ اس بات کی سزا تھی جو گلمینا کے ساتھ پیش آئی تھی۔ گلمینا کی زیادتی کے بدلے میں مجھے شادی دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں پسند گلزیب کو کرتی تھی، میری شادی شاہزیب کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ آپ نے کبھی زندگی میں شاید ایسا تجربہ نہیں کیا ہوگا، شہروں کی محبت بھی عامیانہ سی ہوتی ہے، گاؤں میں سال میں ایک بار محبوب کی جھلک دیکھنے کو ملے اور پھر اتنی تڑپ کے بعد انسان کا نصیب کسی اور کے ساتھ بندھ جائے تو گاؤں کی ویران اور بے رنگ سی زندگی اور بھی بری لگنے لگتی ہے، اس میں جینے کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ ہاں، اگر چاہنے والے محبوب کا ساتھ ہو تو پھر زندگی کی کیا ہی بات ہے، لیکن اب میں بے بس ہو چکی تھی، میرے میں کچھ نہیں رہا تھا۔ میری شادی شاہزیب کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، مگر
मगर ये आम शादियों की तरह ना थी। शादी में किसी किस्म का कोई जश्न वगैरह नहीं किया गया। मुझे घर वाले हकारत की नज़र से देखने लगे, हालांकि सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। ये रिश्ता जल्द ही तय पा गया। मुझे 2 जोड़ों में मेरे घर से रुखसत किया गया। गुलज़ेब इस शादी में शरीक नहीं हुआ था। मैं इसके दिल का हाल समझ सकती थी। मैं भी रोती आंखों के साथ जब इसके घर में दाखिल हुई तो मेरे दिल में शादी की कोई उमंग बाकी नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे आंसू देखकर मेरे शौहर ने पहला ताना मुझे दे डाला, क्यों, क्या तुझे कोई और पसंद था या कोई तेरा आशिक था जो मुझसे शादी करने पर इतने गम बना रही है। मैं इसे क्या बताती कि मुझे क्या गम था। इस तरह भी भला कोई शादी होती है। मेरी सास ने भी औरतों को मेरा मुंह देखने से मना कर दिया, कहा कि ये मनहूस है, इसके मुंह ना लगे, इसकी वजह से बाकी लड़कियों के भी नसीब खराब होंगे। ऐसी लड़की को तो घर से ही नहीं निकलना चाहिए, ये नहुसत की इलामत है। अपने ससुरालियों की ये बातें सुनकर मेरा दिल दाग दाग हो गया, मगर मैं खामोश रही। सजा में बही गई लड़की और कर भी क्या सकती है। मुझे अपने शौहर का इंतजार था कि शायद वो कुछ अच्छी बात कह दे। अब तो मेरा नसीब इसके साथ जुड़ गया था। मैं इसके बारे में अच्छा ही सोच रही थी कि शायद जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी, मगर इसके आने के साथ एक ऐसा वाकया हो गया जिसने मुझे इसकी नज़र में मजीद गिरा दिया। सब लड़कियां मुझे शाहजेब के कमरे में छोड़कर चली गई थी। मैं कमरे में बैठे इसका इंतजार कर रही थी। वो खांसता हुआ कमरे में आया, मेरी तरफ एक नफरत भरी निगाह डालकर बोला, आज से तू मेरी मलकियत है, मगर मैं तेरा कुछ नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लेना। मुझ पर हक जताने की कोशिश भी मत करना। मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम किससे मिलोगी और किससे नहीं, ये मैं तय करूँगा। मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई भरोसा भी नहीं। तुम एक ऐसे खानदान से आई हो जहाँ के मर्द बेमहार हैं, जो दूसरों की इज्जतों पर हाथ डालते हैं। यकीनन इन्हें अपनी भी बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं होगा, ना ही इनकी तरबियत उम्दगी से की होगी। तो तुम आइंदा किसी से नहीं मिलोगी, अपने घर में ही बंद रहोगी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारोगी। और हाँ, अगर तुम बाप या भाई किसी भी मर्द से मिली तो तुम्हें 3 तलाक दे दूंगा। तुम्हारा बाप भी तुम्हारे मैके से तुमसे मिलने आ जाए तो तुम इसके सामने नहीं जाओगी। अगर तुमने ये शर्तें तोड़ी तो तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगी। फिर तो तुम्हारे लिए मौत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। कोई दूसरी शादी तो तुमसे करने से रहा, सो अब तुम इस बात की लाज रखना और किसी मर्द से भी मत मिलना। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत शक है। अभी मैं शौहर की यही बात सुन रही थी कि हमारे कमरे की जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब मैंने ये दस्तक सुनी मेरा दिल घबरा गया था। ऐसी दस्तक तो हमेशा गुलज़ेब ही दिया करता था। वो होले ओले दस्तक देता और मैं बाहर आ जाया करती थी। मेरे दिल में गुजरे लम्हात किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे, मगर मेरे शौहर को ये बात बहुत नागवार गुजरी। किसको बुला रखा था तूने इस घर में? मैं तो अभी से तेरे लक्षण समझ गया हूँ। मुझे तुम पर शक पहले ही था, अब यकीन में बदल गया है। अभी देखता हूँ ये तुम्हारा ही कोई आशिक होगा जो तुम्हारा गम मनाते मनाते तुम्हारे ससुराल तक आ गया होगा। ये कहकर शाहजेब गुस्से से घर से निकला, मगर ना जाने आगे जाकर क्या हुआ। इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो वापस आ गया, मगर मेरे साथ इसका रवैया नहीं बदला। वो बदस्तूर इन्हीं तासुरात के साथ मुझे देख रहा था जैसे मैं इसकी मुजरिम हूँ। इस कैद खाने में मेरे दिन कटने लगे थे। इस सूरज की बेपनाह कशिश अच्छी थी इसको। गुजरते दिनों के साथ मेरे शौहर को भी मुझसे मोहब्बत होने लगी। बोला कि अब तुम अपने बाप के सामने कभी मत जाना, वरना तुमको तलाक हो जाएगी और तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी। मुझे तुम्हारी ये अदाएं नाजो अंदाज पसंद है, सो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से गुजारा करूँगा। अब तुम भी मेरी बनकर रहो और कभी किसी और के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने शौहर की सनायत पर खुश थी कि चलो जैसा भी है इसका रवैया मेरे साथ ठीक तो हुआ, वरना यहाँ अमूमन मर्द अपनी बीवियों के साथ ऐसी ही बदसलूकी करते हैं और इसे आम बात समझते हैं। मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी, मगर गुलज़ेब अंदर से कटता मरता जा रहा था। वो मेरे सामने भी ना आता और जब आता तो इसकी निगाहों में बेपनाह शिकवा होता। लगता कि जैसे वो मुझसे नाराज़ है, मगर अब इसके राज़ी होने या नाराज़ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि एक दिन मेरी ज़िंदगी की काया पलट गई। शाम का वक्त था जब मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई। मैं अपने घर वालों से बहुत अरसे से नहीं मिली थी। जब से शादी हुई थी वो लोग मुझसे मिलने नहीं आए थे, क्योंकि ये यहाँ का कानून था। जो लड़की सजा के तौर पर ब्याही जाए घर वाले इससे नहीं मिलते थे। मगर आज मैं जैसे ही बाहर आई तो देखा अब्बा जान घर के अंदर बैठे थे। इनको देखकर मेरा दिल जज्बात से भर आया था। इससे पहले हमारे दरमियान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और अब जबकि गुलमीना की शादी भी एक अच्छी जगह पर हो गई थी
तो मामलात आहिस्ता आहिस्ता सीधे होने लगे थे। घर वाले सुलह की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी शादी भी सज़ा के तौर पर की गई थी। सब कुछ तवाज़ुन में था। तभी अब्बा मुझसे मिलने आ गए। अब्बा को देखकर मैं बहुत खुश हो गई और जज्बाती भी। झट से जाकर इनके गले से लग गई। अब्बा भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बोले, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। आज चल, तेरा भाई भी बाहर खड़ा है, मैं तुझे ले चलूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं तो अपने घर नहीं आई। मेरी बच्ची, तेरा कोई कसूर नहीं। अब्बा की रहमदिली देखकर मेरा भी दिल पिघल गया। मैं अपने शौहर की बात सिरे से भूल ही गई। अब्बा के साथ चलती हुई घर के बाहर तक आ गई थी। अब्बा के लिए बनी चाय भी वहीं की वहीं रह गई। अब्बा मुझे लेकर बाहर आए। मैं भाई से भी मिली। भाई मुझसे ज़्यादा गर्मजोशी से तो नहीं मिला, मगर मुझे देखकर वो भी खुश हुआ था। मैं इनके साथ गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि खेतों से मेरा शौहर आता दिखाई दिया। मेरे शौहर ने मेरे वालिद को सलाम किया, मगर फिर इसके चेहरे का एक रंग आया और एक गुजर गया। मेरे भाई से भी वो मिला, मगर हम दोनों ही जान गए थे कि जो शर्त हमारे दरमियान तय हुई, इसके मुताबिक अब मैं शाहजेब की बीवी नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपने भाई और बाप दोनों से मिली थी और इसने मुझे किसी भी गैर मर्द से मिलने को मना किया था, वरना मुझे 3 तलाकें हो जाना थी। अब ये कसम टूट गई थी और मैं शाहजेब की बीवी नहीं रही थी। अब्बा के साथ जाने से दिल घबरा रहा था। लगता था कि अब मैं मायके में ही रह जाऊंगी, मगर फिर मेरे शौहर ने इनको कहा कि आप जरा रुक जाएं, आप अपनी बेटी को कल ले जाइएगा। मैंने इसे शिकवा की निगाहों से देखा। मैं अब्बा को सारी हकीकत बताना चाहती थी, मगर फिर इसकी नौबत ही नहीं आई। अब्बा भी चले गए। इनको शायद मुनासिब नहीं लगा कि वो मेरे शौहर के सामने मुझे घर चलने पर इसरार करे या मजबूर करे, मगर ये बात तो हकीकत थी कि मैं अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी थी। अब्बा के जाने के बाद मैंने इससे मुंह फेर लिया। बोला कि इस तरह तो ना करो, हमारा रिश्ता यूं नहीं टूट सकता। मैंने कहा कि तुम चाहे जितनी भी बातें करो, शरीयत के रूह से मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, और अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम गुनाहगार होगे। इतने में मेरे ससुर भी आ गए। मेरी सास को भी ये बात पता चल चुकी थी। इनको तो पहले दिन से ही मुझ पर शक था। इनको शायद मेरे शौहर ने ये बात बता भी रखी थी। अब मैंने अपने अब्बा को हूबहू सारी बातें बता दी। ये सुनकर वो सर पकड़कर बैठ गए। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो ये तुम्हारी बीवी नहीं रही। अब तुम कुछ भी कह दो, मगर तुम अपनी बीवी के लिए हलाल नहीं हो। तुमने इसे तलाक नहीं दी, मगर तलाक हो चुकी है। मेरे ससुर की तरफ से जब इस बात की तस्दीक कर दी गई तो मेरे और मेरे शौहर के लिए साथ रहना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन अब अगर मैं वापस अपने घर जाती तो यकीनन ये सब पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाते। पहले ही खुदा खुदा करके दोनों खानदानों के दरमियान की बर्फ पिघली थी। अब फिर से हालात ख़राब नहीं करना चाहते थे, मगर इसकी नौबत ही कहाँ आई। मेरा शौहर गुस्से से घर से निकल गया। बोला कि तलाक नहीं हुई, और अगर आप लोगों ने इसे तलाक माना तो मैं कभी घर नहीं आऊँगा। मेरा शौहर बहुत ज़िद्दी था। वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता था। गुस्से में घर से निकल गया। सब लोग घर से निकल कर से आवाज़ें देते रोकते रह गए, मगर वो नहीं रुका। इसके पीछे मेरा देवर भी गया, मगर वो कहीं नहीं मिला। अब हम लोग बहुत परेशान बैठे थे। घर में मेरा देवर था, जबकि मेरे ससुर भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको ऐसी ही बेतुकी बात करके तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो हो चुका था सो हो गया। मेरे ससुर ने अपनी पगड़ी मेरे पास उतार कर रख दी और बोले, बेटी, अब खानदानों की दुश्मनी को तुम ही बचा सकती हो। मैं इससे पहले भी ये सब नहीं चाहता था, मगर इन जवानों के गर्म खून की वजह से इतना गलत फैसला हो गया। अब ये सब तुम्हारे लिए है कि तुम अपने ऊपर सब्र और जबर करके अपने घर को बचा लो, या तो फिर अपने बाप और भाई का साथ दो और इनके घर चले जाओ। लेकिन ऐसी सूरत में दोनों तरफ लोग मारे जाएंगे, हमारे दरमियान और दुश्मनी बढ़ेगी। तो बेहतर है कि तुम इसी घर में रह कर किसी माकूल शख्स से निकाह कर लो। लेकिन इस सब की खबर माँ बाप को नहीं होनी चाहिए। अगले दिन मैं हस्ब मामूल अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई, मगर मैंने इन्हें कोई बात नहीं बताई थी। मैंने अपने ससुर की भी बात पर यकीन कर लिया। कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वैसे भी मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अगर मैं तलाक लेकर अपने घर चली भी जाती हूँ तो मेरे घर वाले भी मुझे सीधी नज़र से नहीं देखेंगे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वापसी पर मेरे ससुर ने मुझे जो बात की थी वो मेरे लिए अजीब सी कश्मकश थी। इन्होंने कहा कि तुम्हारे 4 माह की इद्दत पूरी होने के बाद मैं तुम्हारा निकाह अपने बेटे गुलजेब के साथ कर दूंगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे साफ बता दिया था कि इनका छोटा भाई गुलजेब एक ख्वाजा सिरा है, और मेरी शादी के बाद जब इसकी शादी की बात चली तो सब ने यही कहा कि ये तो ख्वाजा सिरा है, इसकी शादी नहीं हो सकती। और वैसे ही ख़ानदान के मुंह पर कालक मलने वाली बात है। गुलजेब ने भी इस बात की कोई तस्दीक
तफ्तीक नहीं की कि इसकी जिन्स क्या है। सब इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज भी हुए थे कि मेरे देवर को ख्वाजा सिरा के तौर पर देखा जाता है, मगर जब इसने खुद ही इस बात को कोई तरतीब नहीं की तो फिर सब लोगों ने इस चीज को हकीकत मान लिया था। अब मेरे देवर का मुझसे कोई पर्दा भी नहीं था, इसी वजह से मेरा शौहर बात पर कोई गुस्सा ना करता था। शायद वो हमारे माजी से नावाकिफ था। गुलजेब ने भी अपने आप को इसी तरह से ढाल लिया था कि वो जनाना बातें करता। मुझे इसकी ये हरकतें अजीब भी लगती, मगर मैंने इसे कुदरत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लिया था। मैं खुदा के सामने शुक्र अदा करती कि मेरा देवर एक ख्वाजा सिरा है और मेरी इससे शादी नहीं होगी, वरना तो मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाती। वो जब घर में चलता पल पल अल्लाह का शुक्र अदा करती। लेकिन ये वजह थी कि मुझे शाहजेब से तलाक होने का दुख भी था। अगरचे मैं पहले गुलजेब को इसकी खूबसूरती की वजह से पसंद करती थी, मगर अब मेरे लिए मेरा शौहर ही सब कुछ था। और वैसे भी शाहजेब की शख्सियत में सख्ती थी, और कुछ सख्ती औरतों को पसंद भी होती है कि इन्हें अपना शौहर बारोब चाहिए होता है। मैं इसी वजह से गुलजेब की हो नहीं सकी थी और अब होना भी नहीं चाहती थी। वो पहले मुझे लड़कर हासिल नहीं कर सका, अब मैं इससे निकाह नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने ससुर के सामने भी ये नुक्ता रखा। मैंने कहा कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सारी जिंदगी शाहजेब के नाम पर गुजारने को तैयार हूँ, मगर मैं कभी भी गुलजेब से निकाह करके इससे बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मेरे लिए दूसरी शादी अहम नहीं है। मैं इस घर में रहूंगी, आपका बेटा मेरे लिए खर्चे की रकम भिजवाता रहेगा। मेरे माँ बाप को भी खबर नहीं होगी। भले वो दूसरी शादी कर ले, मगर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अब वो मेरे दिल में रच बस गया है। मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर ये भी तो सोचो, तुम्हारा निकाह मेरे ख्वाजा सिरा बेटे से हो जाएगा तो तुम महफूज रहोगी। वो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों को तलाक वाली बात पता चल गई तो वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। फिर तुम जानती हो वहाँ तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। इससे अच्छा है कि तुम गुलजेब के साथ बकिया ज़िंदगी गुजार लो, तुम्हारा ख्याल रखेगा, और वैसे भी इससे भी तो कोई शादी नहीं करेगा। वो तो ख्वाजा सिरा मशहूर है। ससुर की बात सुनकर मैं मुतमईन तो हुई थी, मगर मुझे डर भी लग रहा था। मैं अब गुलजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो मेरा बचपना था जो मैं इसे अपनी ज़िंदगी का शहजादा अपने ख्वाब समझ बैठी थी, मगर फिर ससुर के मजबूर करने पर मैंने गुलजेब से निकाह की हामी भर ली। यूं रातों रात मेरा गुलजेब से निकाह कर दिया गया। इस निकाह पर सिर्फ कुछ ही गवाह थे, और मैं ये बात जानती थी कि पूरे गांव में एक ना एक दिन मेरे और गुलजेब के निकाह के बाद तो फैल ही जाएगी। तभी मैंने कुछ नहीं किया, खामोश रही कि बाज़ औक़ात खामोशी बेहतर होती है। इसी में मसलिहत है। गुलजेब के साथ मेरा निकाह हुआ तो मुझ पर एक और आसमान टूट पड़ा। गुलजेब ने शादी के दिन जो मुझे बात बताई, इसने मेरे होश उड़ा दिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। तुम्हारी शादी के बाद सब लोगों ने मुझ पर शादी का दबाव डालना शुरू किया, मगर मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी दुल्हन के रूप में नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने खुद को जनाना चाल ढाल में ढांप दिया। तुम तो जानती हो ऐसे कबायली मर्दों के लिए ये सब करना कितना मुश्किल होता है। सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने यही कहा कि तुम एक औरत बन गई हो। कईयों ने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। इस कदर मेरा मजाक उड़ाया कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, या मैं सचमुच खुद को एक औरत लगता था। तुम जानती हो मैंने ये सब कुर्बानी तुम्हारी वजह से दी है। अब मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ मुखलिस बनकर रहोगी। जब मैंने गुलजेब के मुंह से ये बातें सुनी तो मेरा तो दिल जैसे पिघल ही गया। मैं भूल गई कि शाहजेब भी मेरा शौहर रह चुका है। मुझे यकीन नहीं आया कि कोई मर्द इतनी बड़ी कुर्बानी भी अपनी शख्सियत की दे सकता है। मैंने गुलजेब के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। अब वैसे भी अब मुझे इसी की होकर रहना था। मैं किसी सूरत भी शाहजेब की तो हो नहीं सकती थी। सो मैंने ठान ली कि अब मैं अपनी ज़िंदगी गुलजेब के साथ ही गुजारूंगी। मेरे और गुलजेब के निकाह को 3 महीने हुए थे कि मेरा पहला शौहर घर आ गया। जब इसको ये सब बातें पता चली तो वो आग बगोला हो गया। बोला कि मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगा। गुलजेब वैसे भी मेरी बीवी के लायक नहीं है, वो मेरी है और अब हलाला भी हो चुका है। इसलिए गुलजेब को चाहिए कि वो मेरी बीवी को तलाक दे दे और मैं इससे दोबारा शादी कर लूँ। ये बात मुझे किसी तौर पर कबूल नहीं थी। बात मुफ्ती साहिबान तक गई तो ये फैसला सुनाया गया कि इस तरह हलाला तो वाक़या हो जाता है, और चूँकि मेरा देवर ख्वाजा सिरा नहीं था, हलाला तो वाक़या हो चुका था। मगर मैं इस सूरत में वापस तलाक नहीं चाहती थी, और ये सब मेरी रजामंदी के बगैर नामुमकिन था। जब गुलजेब को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। जब गुलजेब को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ, और मैं भी इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। शाहजेब इस बात पर बहुत गुस्सा था। इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो मेरी तलाक करवा दे और किसी
किसी तरह हमारा निकाह फासिक हो जाए, लेकिन ऐसा तभी होता है जब पहले शोहर ने तलाक ना दी हो और कोई औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले। मैंने तो तलाक के बाद इद्दत पूरी की थी, फिर ही गुलज़ैब से निकाह किया था। अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होना था, मैं निकाह साबिक होना था। मेरा निकाह गुलज़ैब से हो गया था, मैं इसी में खुश थी और खुदा की कुदरत पर भी हैरान थी, जिसने हमें बरसों बाद मुश्किलात से मिलवा दिया। लेकिन अब जबकि हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, एक दूसरे की खातिर इतनी कुर्बानी दे चुके हैं, तो हमें एक दूसरे की इतनी ही कदर भी है। खुदा मुझे और गुलज़ैब को हमेशा खुश रखे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।